أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آیت نمبر 17 سے سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. مثلہم جیسے ہم نے اردو میں دیکھتے ہیں نا مثال، اور ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں. ہم کو جب مثالو اور ہم کو الگ الگ کریں گے تو مثال ان کی، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں اس طرح سے جب ہم الگ الگ لکھیں گے تو ہمیں میننگ اس کا سمجھ میں آئے گا. مسئلہ لکھا ہے پھر پلس ہم لکھا ہے تو مسئلہ ہم مثال ان کی. کمثلی کا مطلب ہوتا ہے کا مطلب جیسے کہ ابھی ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یا پھر مانند ہوتا ہے کا جیسے. ہاں کا میننگ جیسے بھی آتا ہے، اور آگے بڑھیں گے تو ہم لوگ اور بھی اس کی میننگ دیکھیں گے انشاءاللہ. مسئلہ یعنی کہ مثال آگے پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں ابھی. کمثل مثال، جیسے مثال. الذی کا مطلب ہے اس شخص کی. دیکھیے ہم لوگوں نے پیچھے پڑھا تھا الذین. الذین جو ہے وہ آتا ہے وہ لوگ، ہم لوگوں نے پڑھا تھا وہ لوگ جو الذین. یہاں دیکھیے الذی ہے، الذی یعنی کہ یہ سنگولر کے لیے آتا ہے، یہ ایک شخص کے لیے، ایک واحد شخص کے لیے آتا ہے. اور جو الذین ہم لوگوں نے پڑھا تھا وہ فارم جو آتی ہے پلورل کے لیے آتی ہے، جمع کے لیے آتی ہے. تو یہ الذی ہے، تو الذی اس شخص کی. استوقد اس کا دیکھیے روٹ ورڈ واو قاف دال. وقود، وقود کہتے ہیں ایندھن کو، وقود کہتے ہیں ایندھن کو. ایندھن بھی آپ لوگ جانتے ہوں گے نا، اور جیسے کہ وہ آگ جلائی جاتی ہے ایندھن کو، اور آگ بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پر. تو ترجمے میں لکھیں گے ہم جلائی. کیا جلائی؟ آگے دیکھیں نارن یعنی کہ آگ. فلما کو بھی ہم الگ کریں گے. فا کا مینس ہوتا ہے بس یا پھر ہوتا ہے. لما یعنی کہ جب، تو ترجمہ کریں گے پھر جب. اداعت، ہاں اس نے روشن کیا. اداعت آتا ہے اس نے، اور روشن کر دیا. اس کا روٹ ورڈ دیکھیے ڈاٹ واو حمزہ. نیکسٹ دیکھتے ہیں ما حولہ. اس کو بھی دیکھیے دو پارٹ میں اگر ہم کریں گے، بریک کریں گے تو ما حولہ الگ لکھیں گے پلس ہو الگ لکھیں گے. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا ماحول، لیکن عربی میں دیکھیں یہاں ما حولہ کہتے ہیں، اور ہو کا اس کا، اس کا یعنی ماحول اس کا. ذہب اللہ، ذہب کہتے ہیں ذہب اللہ، ذہب مانے لے گیا. دیکھیے یہاں پہ اس طرح سے، اور یہ اللہ کا اللہ ہی آئے گا. ذہب یعنی کہ لے گیا، اللہ اللہ. اس کے بعد دیکھتے ہیں بے نورہم. یہاں پہ بی کا ترجمہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، یہ بی کا ترجمہ یہاں نہیں ہوگا. نورہم دیکھیے نورہم، تو ہم اور نور، نور یعنی کہ ان کا نور، ہم یعنی کہ ان کا نور. وترکہم، وترکہم وا، اور اس کو بھی ہم لوگ تین جیسے پارٹس میں کریں گے. یہ تین ورڈ ہیں یہاں پہ دیکھیے، وا ترکا اور ہم الگ کریں گے. وا اور ترکا چھوڑ دیا. چھوڑ دیا اردو میں جیسے کہتے ہیں ترک کر دیا، ہے نا، ترک کر دیا. تو ہم آتا ہے ان کو، ٹھیک ہے، چھوڑ دیا ان کو. فی، فی میں
जुलुमातिन अंधेरों में, जुलुमातिन अंधेरों में। इसके बाद देखते हैं, हाँ ला नहीं, युबसिरून, युबसिरून, इसको भी तीन पार्ट में ब्रेक करेंगे। तो यहाँ या से शुरू हो रहा है थर्ड पर्सन के लिए, वो लास्ट में देखिए वाओ नून है, वाओ नून आया है। हाँ, तो ये बताती है कि प्लूरल फॉर्म है और जमा का सीगा है, यानी कि हाँ। और देखिए बीच में ये जो आया है ब सौद रो, ये रूट वर्ड हुआ यानी कि बसर। तो यू युबासि युबसिरून, वो देख पाते, बसर होता है बसीरत, जैसे कि हम लोग देखना होता है, वो देख पाते। आयत नंबर 18 देख लेते हैं। सुमुम, सुमुम, वो बहरे हैं। बुकुमुम, गूंगे हैं। इनको ऐसे ही याद करेंगे। उमयुन, अंधे हैं। फहुम, इसको भी ऐसे अलग अलग करेंगे। तो फा का मीनिंग बताया था ना, फा का मीनिंग है बस या तो वो, ला नहीं, यरजिऊन, यरजिऊन, यहाँ भी देखिए या से शुरू हो रहा है तो थर्ड पर्सन के लिए है वो, और लास्ट में वाओ नून है तो इसका मतलब है कि प्लूरल फॉर्म में है, जमा का सीगा है। बीच में क्या आ रहा है, रॉ जीम आइन, रुजू, रुजू करना यानी कि लौटना या पलटना। यरजिऊन, वो पलटेंगे, या कहें हम लोग या लौटेंगे, वो लौटेंगे। देखिए वो पलटेंगे, वो लौटेंगे, मतलब दोनों मीनिंग लिख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आयत नंबर 19 देख लेते हैं। आव, आव का मीनिंग या, कसैये बिन, का को अलग करेंगे कसैये बिन का। तो और या, का मानिंद होता है, जैसे भी आएगा मानिंद भी होगा। सैयबिन, जोरदार बारिश। जोरदार, जैसे जोरदार बारिश, क्योंकि का हमने बताया था ना पहले भी, का जैसे, तो का जैसे जोरदार बारिश। मिन से, अस्समाई, आसमान। फी ही, फी को यहाँ पे अलग अलग करेंगे तो फी में, और हाजिर ही उसमें। जुलुमातुन, जुलुमातुन अंधेरे हैं। वरादुन, वरादुन का वाव को अलग करेंगे, वाव का मीन्स हो गया और, रादुन को कहते हैं गरज, कड़क। हम्म, जैसे कि इसकी सूरत भी है, सूरतुल राउद। इसमें उसका मीनिंग है क्या है, कड़क या गरज। कुरान में हमने देखते हैं उसका वराउदुन करके आती है एक सूरत आती है राउदुन। तो इसका मीनिंग लिखेंगे हम, और कड़क है या गरज है। आगे वबरकुन, वबरकुन और बिजली है। वा का मीनिंग और है, बरकुन का मीनिंग बिजली है, तो वा बरकुन और बिजली है। यजअलूना, यजअलूना में भी या से शुरू हो रहा है और वानून का जमा का सीगा है। यजअलूना, वो डाल लेते हैं। असाबिहिम, फी अज़ानिहिम, अपने कानों में। फी में हो गया, अजा निहिम, अजा निहिम यानी कि होता है उंगलियां, नहीं सॉरी, अजा निहिम यानी कि कान, कानों को कहते हैं, अपने कानों में। क्या डाल लेते हैं देखिए,
اس کا ایک वर्ड शायद मिस हो गया है. असाबहिम यानी कि होती है उंगलियां, तो डाल लेते हैं वो अपनी उंगलियां. फी में अजानहिम, अजानहिम यहाँ जो देख रहे हैं ये फी अजानहिम अपने कानों में, यहाँ पे अगर हम लोग अलग अलग करेंगे तो ये जो फी का मीनिंग अलग कर लेते हैं में, अजानहिम अजान को अलग कर लेते हैं, हिम को अलग कर लेते हैं. तो अजान जो है तो उजुन की जमा है, उजुन कहते हैं कान को, उजुन कहते हैं कानों को, और हिम हो गया उनके, यानी अपने कानों में. फी अजानहिम अपने कानों में. अस्सवाइक़ यानी कि सवाइक़ कहते हैं बिजली की कड़क को, जो आवाज होती है ना कड़क की, उसको कहते हैं सवाइक़, बिजली की कड़क. हज़र अल मौत, हज़र अल मौती, हज़र को अलग करेंगे, देखिए लिखा है हज़रा यानी कि डरते हुए, अल मौत मौत से. वल्लाहु और अल्लाह ताला, मुहीतुन यानी कि मोहित यानी कि होता है अहाता किए है, वो पूरी तरीके से अहाता किए अल्लाह ताला, तो अहाता किए हुए ही इसको लिखेंगे, मोहितुन अहाता किए हुए है. बिल काफिरीन, यहाँ पे बी का मीनिंग नहीं लिखेंगे, बी का मीनिंग का जो है उसको नहीं लिखा जाएगा. काफिरून काफरीन यानी कि काफरों का. आयत नंबर 20 देख लेते हैं. इसका भी लफ्जी तर्जुमा देखते हैं. यकादू, यकादू करीब है. अल बरकू यानी कि अल बरकू बिजली. कुछ वर्ड ऐसे हैं आप लोग को याद करने पड़ेंगे, ठीक है. या और सेम यही लफ्ज हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, जो पीछे हमने देखा ना अभी, पीछे करें इसको, अल बरकू को, सेम यही लफ्ज हमने पीछे देखा था ना, आयत नंबर 19 में पढ़ा था उन्होंने, ये भी देखे अल बरकू, ये भी यहाँ भी बिजली होगा, पीछे भी वही. ऐसा ना हो कि आप लोग मतलब समझिए कुछ मतलब मिस्टेक है, ये एक ही मीनिंग होगी उसकी भी. अल बरकू बिजली. यख्तफू, यख्तफू में देखिए, यख्तफू इसका रूट वर्ड भी देख लेंगे, फा ता और फा. यख्तफू यानी कि उचक, उचकते हैं, यानी कि छीन ले, ठीक है. इसका मीनिंग आएगा छीन ले या उचक ले. अब सौरा हम उनकी निगाहें, हम को अलग कर लेंगे, अगर हम अलग अलग करके देखेंगे इसको तो हम यानी कि हो गया उनकी, अब सौर माने हो गया बसर, यानी कि बसर यानी कहते हैं अबसार की जमा, प्लूरल फॉर्म. हाँ, तो यानी कि होता है इसका निगाहें. अबसार हम निगाहें उनकी. कुल्लमा जबकि, अदा और अहा, अदा यानी कि उसने रोशन की. लहुम, लहुम लाम लिए, हम उनके, उनके लिए. लाके और भी मीनिंग हम लोग ने अभी आएगा आगे आगे, तो अल्फाज का चेंज होता जाएगा, आप लोग इसमें घबराना नहीं, मीनिंग अलग अलग भी आती है. लाके और भी मीनिंग है, जैसे कि जैसे जैसे अल्फाज आगे आएंगे ना वैसे वैसे हम इंशाल्लाह बताएंगे. ये देखिए अब, माशाऊ, माशाऊ वो चल पड़े. फी ही उसमें, वाइजा और जब, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इससे याद हो गया होगा इंशाल्लाह आप लोग को. अजलमा जुलुमात पढ़ा है ना हम लोगों ने पीछे आयत नंबर 17 में जुलुमात, तो वही है यहाँ पर.
उसने अंधेरा किया, अलैहिम उन पर, या उनके ऊपर, कामू, कामू कहते हैं जैसे उर्दू में हम लोग कहते हैं ना कयाम करना, आपने सुना होगा। जैसे नमाज में हम कहते हैं ना कयाम करते हैं, तो कयाम मतलब होता है खड़े होना, खड़े होते हैं, तो वो खड़े हो जाते हैं। वलो, और अगर, शाह, शाह का वर्ड भी आप लोगों ने सुना होगा, हम लोग जैसे वर्ड कहते हैं ना इंशाअल्लाह माशाअल्लाह, तो शाह मतलब होता है चाहा, जैसे कहते हैं ना इंशाअल्लाह। तो यानी कि अगर अल्लाह चाहे, शाह का मतलब होगा चाहा, अल्लाह अल्लाह चाहे। लजह, लजहबा, लजहबा यानी कि ले जाए। ला, यहाँ पे आएगा ला जरूर। अभी हमने पीछे देखा था ना लहुम, लहुम में ला के माने था लिए, और हुम उनके, और यहाँ पर है ला जहबा, तो यहाँ पर इसका मतलब है ला जरूर। क्योंकि जब लाम पर जबर आता है तो वो बहुत सारे मीनिंग आते हैं, उसके चेंज होते रहते हैं। ला जरूर जहबा ले जाए, या ले जाते, या ले जाता। ठीक है। बेसमइहिम, बी का यहाँ तर्जुमा नहीं करेंगे, यहाँ पे देखिए समाई, समाई है, यानी कि सुनने की ताकत। हम्म। और हिम कहेंगे उनकी, यानी उनकी सुनने की ताकत, यानी कि समात उनकी। वो अब सौरहिम, व और, अब सौरहिम निगाहें उनकी। इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, अला ऊपर, कुल्ला, कुल्ली यहाँ पे कुल्ला दिया है, इसके मतलब होते हैं हर, हर एक चीज, यानी कि चीज तो नहीं कहेंगे यहाँ पे, हर कहेंगे कुल्ले को। और इसके आगे आता है शाइन, यानी कि यहाँ होगा चीज, यानी कि हर चीज पे। कदीर, कदीर यानी कि कुदरत रखने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ आयत पूरी होती है। दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।